Hello and welcome everyone to today's session of Pratitih. Pratitih, this is from Warriors Grid and I am Sahil from Warriors Grid. I will present you this session which is important if you are preparing for any defense examinations or any banking or civil service examinations. In this session, we will discuss some questions from the general knowledge, defense related and current affairs part. We will start from the current affairs part, and in today's session we will continue in a format that we will be given some sentences and we will tell whether or not it is correct or which of the statements given are correct or which are not correct. So let's see, and with this way we can learn some current affairs and GK related questions. So let's see. First question, consider the following statements regarding the Wayanad Wildlife Sanctuary. So Wayanad Wildlife Sanctuary, it is an integral part of Nilgiri Biosphere Reserve. First statement is given that it is an integral part of the Nilgiri Biosphere Reserve. Second, it is included in the UNESCO. UNESCO is a United Nations, the World Network of Biosphere Reserves, जो UNESCO का होता है, World Network of Biosphere Reserves, इसको उसमें इंक्लूड किया गया है, ये जो वायनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. और थर्ड वन इज द कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू द सेंचुरी. कावेरी रिवर इस सेंचुरी में फ्लो होता है. वेरी एंशिएंट रिवर, according to Indian mythology, Kaveri river is very important and this river flows through the sanctuary. So these three statements are given to us and we have to tell whether or not these statements are correct. Let's see first sentence. So located in Kerala, the Wayanad Wildlife Sanctuary, WWS, Wayanad Wildlife Sanctuary, ये केरला में लोकेटेड है और ये एक इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का. It was established in 1973. So statement 1 is correct. So it is an integral part of Wayanad Wildlife Sanctuary. Nilgiri Biosphere Reserve was the first from India to be included in the UNESCO designated World Network of Biosphere Reserves, designated in 2012. Hence statement 2 is also correct. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या दिया गया था कि इट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, क्योंकि वायनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंटीग्रल पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जिसको 2012 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया था. तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 2012 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में डेजिग्नेट किया गया था. अदर वाइल्ड लाइफ पार्क्स विद इन द रिजर्व, जो नीलगिरी रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें वायनद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा और कौन कौन से पार्क्स हैं या फिर रिजर्व्स हैं उसको देखते हैं. मधुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली. दीज आर द अदर parks and reserves which are present in the Nilgiri Biosphere Reserve other than the Wayanad Wildlife Sanctuary. अगर Wayanad Wildlife Sanctuary की बात करें तो it is spread over 344.44 square kilometers, which is a contiguous to the tiger reserves of the Nagarhole and Bandipur of Karnataka and Madhumulai of Tamil Nadu. ये एक बेसिकली टाइगर रिजर्व है. और कावेरी रिवर, which is a tributary of the Kaveri river, flows through the sanctuary. So itself, the Kaveri river is not flowing here in this sanctuary. It is the Kaveri river which flows through the sanctuary, which is a tributary of the Kaveri river. So statement 3 में जो दिया गया था कि Kaveri river flows through the sanctuary, this is not correct. Kaveri river flows through the sanctuary. द फॉरेस्ट टाइप्स, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसमें कौन कौन से फॉरेस्ट इंक्लूड है इस फॉरेस्ट टाइप जो है उसमें. तो साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड प्लांटेशंस ऑफ टीक, यूकैलिप्टस
and Grevillea. These are the forests which are included in this sanctuary. Elephant, मेनली टाइगर हमने तो पढ़ा था, मेनली टाइगर भी है, टाइगर रिजर्व है, और उसके अलावा एलिफेंट, गौर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बियर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी लांगुर, बॉनेट मैस्केट, बॉनेट मैक्यू, कॉमन langur, Malabar giant squirrel, all these animals etc. are the major animals which are included in this wildlife sanctuary, Wayanand Wildlife Sanctuary. जिनमें से ये जो नाम मैंने बताए उनमें से सबसे मेजर एलिफेंट, टाइगर और ये मालाबार जायंट स्क्वायरल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में दिया गया है, इसको याद करेंगे. दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन, ये एक इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन. सो लेट्स सी, विथ रेफरेंस टू द ग्रीन बॉन्ड्स, जो ग्रीन बॉन्ड है उसको अगर रेफरल करके दो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं. क्या है कि पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. ग्रीन बॉन्ड जो है एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है विथ व्हिच कैपिटल इज बीइंग रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स. सेकंड स्टेटमेंट, बजट 2022, 2022 का जो बजट है उसको उसमें अनाउंस किया गया था दिस इशुएंस ऑफ द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की इशुएंस के रिगार्डिंग 2022 के जो बजट है उसमें अनाउंस किया गया था. तो ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट है या फिर नहीं, लेट्स सी. तो अ ग्रीन बॉन्ड इज बेसिकली इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट. इट इज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट विथ व्हिच कैपिटल इज बीइंग रेज्ड टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट्स. जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं उसको फंड करने के लिए, कैपिटल रेज कराने के लिए एक बॉन्ड इशू किया जाता है, जिसको जो कि एक इट इज वन टाइप ऑफ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट which typically includes those relating to the renewable energy. जो green projects क्या क्या है, तो जो projects relating to the renewable energy, clean transportation, sustainable water management, these all are the projects which comes under the green projects. तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा था वो सही था. ग्रीन बॉन्ड इज basically a debt instrument which is with which the capital is being raised to fund the green projects like clean transportation, renewable energy, sustainable water management, all these project like this. So statement 1 is correct. तो इसमें थोड़ा और डिटेल में जानते हैं. बॉन्ड इज अ फिक्स्ड, बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर. तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, वो इंडियन बॉन्ड इशू करेगा और उस बॉन्ड को कोई भी कंट्री खरीद सकता है या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खरीदेंगे और उसके बदले में वो इंडियन गवर्नमेंट को पैसा देंगे. तो ये एक बेसिकली इनकम, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है अ लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर, टिपिकली कॉर्पोरेट और गवर्नमेंटल. ये गवर्नमेंटल और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं. The bonds traditionally paid a fixed interest rate to investors. So recently, finance minister in the budget 2022, 2022 का जो बजट है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारा निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अनाउंस किया था कि the government proposes to issue sovereign green bonds to mobilize resources for green infrastructure. तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हम कंप्लीटली कार्बन एमिशन फ्री होना चाहते हैं, कंप्लीटली हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हिच कम्स अंडर दिस व्हिच हैज टू बी कंप्लीटेड टू बिकम अ क्लीन एनर्जी सेक्टर इन इंडिया. दैट्स व्हाई आवर फाइनेंस मिनिस्टर proposed to issue these sovereign green bonds on this budget session, that is in 2022. Or the proceeds will be deployed in public sector projects which will help in reducing carbon intensity of the economy. So the announcement of the sync with the India's commitment to achieving net zero carbon emissions, जो कि 2070 का जो टारगेट हमने रखा है कि 2070 के करीब हम
नेट जीरो कार्बन एमिशंस में शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि द इंडिया विल नेवर नॉट प्रोड्यूस एनी मोर कार्बन एंड कार्बन रिलेटेड वेस्ट। तो ये स्टेटमेंट 2 सही है। जो ग्रीन बॉन्ड है इसको इस बजट में प्रस्तावित किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। तो लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। ये एक क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी काइंड ऑफ थिंग। तो पहला स्टेटमेंट इज वन सन वन ग्रिड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ये जो प्रोजेक्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दिस विल बी द फर्स्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड। ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर, ये वाला ये इस वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने पहले भी बात कर चुका है। ये हम लोग कर चुके हैं इस प्रतिथि के सेशन में। जब एक नया अपडेट आया होगा इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो है ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड बनेगा। It was launched, second statement क्या है, it was launched jointly by India, the UK and the United Nations Climate Conference, that is COP26. इंडिया यूके एट द इन दोनों ने इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था, लॉन्च किया था। इंडिया और यूके ने जो यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था COP26, उसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था, इंडिया और यूके ने। ये 2 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसोवोग बोल सकते हैं हम उसको, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ओसोवोग। तो it will be the first international network of global interconnected solar power grids, which will combine large-scale solar power stations, wind farms, and grids with rooftop solar and community grids to ensure a reliable, resilient, and affordable supply of clean energy for all. So, statement 1 हमारा सही है। तो ये ग्लोबली इंटरकनेक्टेड पहला ग्लोबली इंटरकनेक्टेड इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ सोलर पावर ग्रिड्स बनेगा। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और इसको प्रपोज को किन्होंने किया था, इंडिया और यूके ने इसको जॉइंटली प्रपोज किया था, लॉन्च किया था दिस प्रोजेक्ट को, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो कि COP26 था। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, इसको इंडिया और यूके ने जॉइंटली लॉन्च किया था। द विजन बिहाइंड दिस ओसोवोग, यानी कि वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, इसका जो उसके पीछे का जो विजन है क्या है कि द सन नेवर सेट्स and is a constant at some geographical location globally at any point of time. So this is by far one of the most ambitious schemes undertaken by any country and is of global significance in terms of sharing economic benefits. It has been taken up under the Technical Assistance Program of the World Bank. Osobov plan may also leverage the International Solar Alliance, that is ISA, co-founded by India, that has 67 countries as its members. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये यहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये जो एग्रीमेंट है, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये एक एग्रीमेंट है। ये ईरान और 6 अदर कंट्रीज के बीच में ये एग्रीमेंट है। ईरान और 6 अदर कंट्रीज के बीच में ये एक एग्रीमेंट हुआ था, जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन।
जो 6 अदर कंट्रीज है ये के कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना एंड जर्मनी. These are the 6 other countries which are the members of this joint comprehensive plan of action. It is related to which of the following? ये जो joint comprehensive plan of action है ये किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रिलेट करता है कौन से किससे ये रिलेटेड है? ये जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ये किससे रिलेटेड है? लेट्स सी. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एंड फॉरेन अफेयर्स का क्वेश्चन है. लेट्स सी. जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन क्या है? पॉपुलरली इसको बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील. इसका अदर नाम जो लोकली न्यूज वाले भी बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील. पेपर में ऑन पेपर दिस इज जॉइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. इट इज नन अदर देन ईरान न्यूक्लियर डील. क्या है? It was the result of the prolonged negotiations from 2013 and 2015 between Iran and the P5+1. ये जो P5+1 कंट्रीज हैं इनके और ईरान के बीच में ये एक प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस का आउटकम था. क्या है? इट हैपेंड ड्यू टू द back channel talks between the US, that is then President Barack Obama. तब जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे बाराक ओबामा, उनके बीच में और ईरान के बीच में जो बैक साइड टॉक हुए थे उसका ये एक परिणाम था. क्वाइटली ब्रोकर्ड बाय ओमन. ओमन ने इसको नेगोशिएट करवाया था उन दोनों के बीच में इन एन अटेम्प्ट टू रिपेयर द एक्यूमुलेटेड मिसट्रस्ट सिंस द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन. क्या था इस्लामिक रेवोल्यूशन? इसको भी जान लेते हैं. इस्लामिक रेवोल्यूशन क्या था? इट इज आल्सो कॉल्ड एन इरानियन रेवोल्यूशन. पॉपुलर अपराइजिंग इन Iran in 1978 to 1979 that resulted in the toppling of the monarchy on 11th of February 1979 and led to the establishment of the Islamic Republic. तो ये था 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन. तो उस वक्त से जो ईरान के ऊपर से पूरे वर्ल्ड का ट्रस्ट उठ गया था, तब से उसको उस मिसट्रस्ट को रिपेयर करने के लिए ये एक बैक चैनल टॉक था यूएस और ईरान के बीच में, जिसको ओमन ने ब्रोकर किया था. यानी कि ओमन उसमें मिडिल एजेंट था और ये एक डील बना. उसका परिणाम से एक डील बना ईरान और बाकी जो P5+1 है उनके बीच में. तो एज पार्ट ऑफ द डील ईरान ने क्या किया? ईरान एग्री किया टू रिड्यूस इट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस बाय 2/3. न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस का काम क्या होता है? क्योंकि ईरान का मकसद ये था कि वो खुद के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा. तो उसको वो रिड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को इस्तेमाल कर रहा था बॉम्ब बनाने के लिए, उसको वो रिड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस को नंबर को उसने एग्री किया. Iran also agreed to reduce its stockpile of enriched uranium by 98% and limit uranium enrichment to 3.67%. क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है वो लगभग 90% के करीब हमें चाहिए होता है. 90 वी कैन टेल दिस एज 90% प्योर यूरेनियम, क्योंकि प्योर फॉर्म में यूरेनियम तो मिलता नहीं है और उसको एनरिचमेंट करना पड़ता है और बहुत ही कम मात्रा में यूरेनियम अवेलेबल होता है, एज इट इज a radioactive element also. Uranium enrichment is necessary even for the production of electricity from the uranium. So बॉम्ब बनाने के लिए जो एनरिचमेंट चाहिए होगा, मतलब जो परसेंटेज ऑफ एनरिचमेंट चाहिए होगा वो करीब 90% 90 to 98% होगा, जिसको ईरान ने अग्री किया कि वो बॉम्ब नहीं बनाएगा. यानी कि वो अपना जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का जो प्रोसेस स्टॉक फाइल है उसको रिड्यूस करके वो 98% रिड्यूस करेगा और 3.67% के करीब रखेगा. It will have enough enriched uranium to maintain a country's energy needs. ये
कंट्री का जो एनर्जी सेक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए वो काफी होगा, लेकिन विदाउट हैविंग द एबिलिटी टू बिल्ड अ न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए ये काफी नहीं होगा। इसीलिए ये डील बना। द डील एम, डील का जो एम क्या था, टू रेस्ट्रिक्ट ईरान एबिलिटी टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स इन एक्सचेंज फॉर लिफ्टिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान। तो ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, क्योंकि वो प्रयास कर रहा था एटॉमिक बम बनाने के लिए, उसको हटाने के लिए ईरान उसको हटाने के लिए ये डील में वो एग्री किया। जेसीपीओए इंश्योर करता है, जेसीपीओए इंश्योर्ड the comprehensive lifting of all the United Nations Security Council sanctions as well as the multilateral and national sanctions related to the Iran's nuclear program. Inspectors from the International Atomic Energy Agency, that is IAEA, were given access to Iran's nuclear facilities for inspection on a regular basis. So option D is correct, that is this joint comprehensive plan of action is related to the nuclear capability. क्योंकि अभी की बात अगर करें, ईरान आफ्टर दी डोनाल्ड ट्रम्प्स, क्या जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट्स के, तो उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील को मानने से मना कर दिया, और अभी तो ईरान सैंक्शंस झेल रहा है अभी भी, और ईरान का जो एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है वो लगभग 60-70 या 90 के करीब पहुंच चुका है. We don't have the clear information. Iran is much closer to build a nuclear bomb right now. Next question, two statements are given to us that is related to पर्वतमाला. तो पर्वतमाला के रिगार्डिंग हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. तो पर्वतमाला जो है द एम इज टू, इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स है क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट, द एम इज टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी टू हिली रीजन्स फॉर मिलिट्री ट्रूप्स मूवमेंट ओनली. द एम इज टू improve the connectivity to hilly regions for military troops movement only. Second, border road organization, that is BRO, is the nodal agency for the scheme. पर्वतमाला जो स्कीम है उसका जो नोडल एजेंसी बोल सकते हैं वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है. तो which the above statements are correct. Recently, the finance minister, union finance minister in the union budget of 2022 and 23 announced that the national ropeways development program Parbatmala, it is a national ropeways development program Parbatmala to improve the connectivity in the hilly areas. The idea is to improve connectivity and convenience for the commuters beside promoting tourism. So statement 1 गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमें दिया गया था कि मिलिट्री ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए ये से बना है, तो वो गलत है क्योंकि ये कन्वीनियंस ऑफ द कम्यूटर्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया है. दिस में आल्सो कवर कंजेस्टेड अर्बन एरियाज where the conventional mass transit systems are not feasible. The scheme is being presently started in the regions like Uttarakhand, Himachal Pradesh, Manipur, Jammu and Kashmir and the other northeastern states. जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, this will have the responsibility for the development of roadways and the alternative mobility solutions for technology as well as the construction, research and policy in this area. So his statement 2 is not also not correct. So both the statements are wrong. Statement 2 बता रहा था कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक स्कीम होगा, लेकिन ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इसको मैनेज करेगा. This will have the responsibility for the development of the roadway. तो स्टेटमेंट 2 भी गलत है. तो ये था पर्वतमाला के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स. तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा प्रतिथि का सेशन अभी एंड होता है. जस्ट बिफोर एंडिंग दैट आई वांट टू अनाउंस दैट प्रतिथि हैज अ मंथली मैगजीन आल्सो व्हिच इज पब्लिश्ड इन पीडीएफ फॉर्मेट compiled by professionals from all the leading newspapers. It will help you if you are preparing for any competitive examinations like NDA, CDS, banking, civil services, UPSC and any other uniform civil service examination. It has some subscription fee. You can choose as per your convenient.
For a monthly plan, you have to pay 100 rupees per month. For a half yearly plan, if you are paying a one-time fee of 300 rupees, your subscription will be active for 6 months. And if you are paying a one-time fee of 500 rupees, your subscription will be active for 12 months. To subscribe this monthly magazine of Pratitih, you have to visit our website, that is www.warriorsgrid.in. And after registering there, you will be given a free PDF of the previous month, and the subsequent PDF for your fees will be provided to you after that next month. So this is a message to those students and aspirants who are aspiring to join defense forces, who have a dream of joining the defense forces, or a dream of wearing a uniform. They want to see them wearing a uniform, become an officer, or they want to serve for the nation. They can join Warrior Script. So here we will prepare you to for these examinations which are necessary to clear, which are necessary to clear to get into the defense forces, like NDA, CDS, AFCAT, CAPF, INET, Army, SSGD, Police, Paramilitary Forces, Navy, Air Force. So we will prepare them for these examinations. We will provide you for the educational educators, or we can say instructors, physical instructors, educators, which will help you, which they will help you to for the preparations of these examinations, and it will be easier for you to clear examinations. So to join us, you have to call on the number given below, that is 9903459583 or 9903429583, or you may just visit our website, that is www.warriorsgrid.in. So with this, I conclude today's session. We will meet tomorrow. Till then, do like, share, comment, subscribe. Thank you. Jai Hind.